हेलो। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? भास्कर, am I audible to all? अक्षय, हेलो आंचल शर्मा, मे आई ऑडिबल टू ऑल? रेस्पॉन्स दो बेटा। हाँ बेटा, विजिबल है सभी को? ओके, सो लेट अस स्टार्ट द lecture regarding the subject is the digital electronics. Myself, Dr. Ritesh Kumar Saraswat, Assistant Professor in EC Department, MLB Textile, College Dilwara. So, firstly, discuss the syllabus of respective subject of digital electronics in IT branch. Basically, the contents are covered. First one unit is fundamental concepts, which is cover the number system and the codes, basic logic gates, Boolean algebra, sign, magnitude, representation, fixed point representation, complement notation, various codes, feature of logic algebra, Boolean algebra, and theorems of respective Boolean algebra. Basically, this one unit will cover the different types of number system. That will be the binary number system, octal, hexadecimal, decimal,
They are the basic various type of codes and the number system are covered in this unit, and also include the representation of the various codes and the number systems. Okay. Next one unit is related to the minimization techniques and logic gates. Minimization techniques basically related to the sort out the Boolean algebra. Okay, and the include the main term, max term, SOP form, POC, POS form, K map, and don't care condition. Okay. The next one slide will indicate the number of books are related to the Mayank. यस सर। हाँ, अब आवाज नहीं आ रही थी क्या लेक्चर के टाइम पे? सर आपने शुरू ही नहीं किया कुछ ओके, शायद। मैं चलो दोबारा इसको वो करता हूँ, है ना, दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन को। ओके, सर स्क्रीन तो शो हो रही थी पर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर।
स्क्रीन विजिबल है? Okay. So again start the, due to some technical problems, so again started the lecture. The firstly consider the syllabus of the digital electronic subject. The subject basically divided into the 5 units. First one unit is the fundamental concept, which is cover the various type of number system and the respective codes. Okay. It is also include the logic gate, Boolean algebra, sign and magnitude. And the next one is the unit is the minimization technique and logic gates, which include the mean term, max term. हेलो, अब आ रही है आवाज और स्क्रीन शेयर कंप्लीट है ना? ठीक, ओके. नेक्स्ट वन यूनिट इज द related to the minimization techniques and the logic gates. The minimization technique basically focus on the minimize the particular expression that is known as the Boolean expression in case of the digital electronics. Okay. The basic simple form में अगर अपन इसको understand करें तो digital electronics basically focus किस पर रहेगा? Representation of the signal in form of the digital signal. Digital basically क्या है? Combination or formation of 0 and 1. Okay. So digital signal basically defined in two formation of that is related to the 0 or 1. Okay. So first one unit basically focus करेगी कि अपन नंबर सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट करें. नंबर सिस्टम जिसमें क्या रहेंगे? 0 और 1 का फॉर्मेशन रहेगा, उसको अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. सेकंड, और ये इंक्लूड क्या करेगा? कोडेड फॉर्म में. कोडेड फॉर्म क्या रहेगा? कोड फॉर्म में रहेगा. कॉम्बिनेशन किसका रहेगा? 0 एंड 1 का. जैसे 0 0 0 1 1 1. सो बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 and the may be represented into the coded form. Okay. The second one unit is the minimization technique and the logic gate. Minimization technique basically related to the minimize the expression. Okay, minimize the expression. मैं आपको जैसे अब आगे पीपीटी में अपन और स्टडी करेंगे. मिनिमाइजेशन एक्सप्रेशन किसका रहेगा? 0 1 का कोई फॉर्मेशन है, कोई 5 डिजिट्स हैं 0 और 1 के, उसको अपने को मिनिमाइज करना है 0 और 1 की फॉर्म में ही, but number of digit will be reduces from 5 to 1 or 5 to 2. Okay. तो 5 से 5 की बजाय अपन 2 या 1 डिजिट से भी अगर हम उसको रिप्रेजेंटेशन करें तो दैट इज नोन एज द मिनिमाइजेशन टेक्निक. ओके. इसके डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट वे हैं जिससे अपन इसको डिफाइन करते हैं. अब बेसिकली इस यूनिट में दो तरह की फॉर्म्स को अपन स्टडी करेंगे, एसओपी एंड पीओएस. एसओपी एंड पीओएस फॉर्म आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ minimized expression. Okay. The third one unit is the digital logic gates, which include the different types of logic gate. Different types of logic gate को अपन define या design कर सकते हैं by using the transistor, by using the diode, by using the resistance, by using the capacitor. तो basically 4 ये element रहेंगे. इस elements को use करके अपन कोई भी logic gate को design कर सकते हैं, कोई भी logic gate को define कर सकते हैं. Okay. Next one is the combinational circuit. Combinational circuit basically include the adder, decoder, multiplexer and demultiplexer. ये वाली यूनिट भी एक्चुअली इसको इंक्लूड करेगी. जैसे एडर, कोई भी बिट या कोई भी सीक्वेंस दे रखी है 0 1 की फॉर्म में, उसको अपने को ऐड करना है, एडर की फॉर्म में यूज में ले सकते हैं. एनकोडर की फॉर्म में, दैट मींस द कन्वर्टेड इनटू द कोडेड फॉर्म, सो वी हैव टू यूजिंग द एनकोडर. एनकोडर का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? डिकोडर. इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है. तो ये वाली चीज अपन जब जैसे यूनिट की स्टडी करेंगे और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाऊंगा. नेक्स्ट, द फाइनल लास्ट वन इज द सीक्वेंशियल सर्किट. सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली
include the latches and flip-flop. Latches and flip-flop are the combination of the SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, T flip, master, slave, JK flip. These are the different types of the flip-flop. Basically the flip-flop are known as the memory element. 0-1 की फॉर्म में जो भी अपन कोडेड या सिग्नल या सीक्वेंस बना रहे हैं उसको अपन कहीं मेमोरी में स्टोर करना चाहें तो उस केस में अपन फ्लिप फ्लॉप और लेचेस का यूज करते हैं. ओके, next one PPT will represent the number of books are related to the subject digital electronics. The first one is the Morris Mano book digital electronics and design. Title रहेगा, publication है PHA publication. Second one book is the RP Jain. The title is digital electronics TMH publication करेगा. And the third one is the NG Palan. The title is digital electronics and design Technova publication. अब एक्चुअली क्या है कि कोरोना और पेंडेमिक की वजह से अपन फिजिकली इन बुक्स को न तो लाइब्रेरी से इशू कर सकते हैं, आप हो सकता है मार्केट से आप परचेज कर सकते हो, पर अभी कॉलेज में आके ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. पर इनकी पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी अपन इजीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं. अपन गूगल में जाके अगर इसका पीडीएफ की अपन फ्री डाउनलोड डालें तो मे बी पॉसिबल कि इनका सॉफ्ट कॉपी अपने को इजीली मिल सकता है. उसको अपन डाउनलोड करके और जो जो लेक्चर हो रहे हैं उनके साथ अपन इनको स्टडी करते हैं. ओके, आपके जो भी लेक्चर हैं, जो भी क्लासेस हैं, आपके टाइम टेबल में जो हैं उसके रेस्पेक्टिव आपको अटेंड करनी है. मतलब मैं आपको टाइमली व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम अभी बनाऊंगा, गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर अटैच हो जाओ. मैं गूगल क्लासरूम पे टाइम टू टाइम उसकी लिंक और उसका पासकोड सेंड करता जाऊंगा और आप इसको आपका जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के रेस्पेक्टिव मैं क्लास इसमें कंटिन्यू लेता रहूंगा. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द पीपीटी. दैट इज द फर्स्ट वन इज द नंबर सिस्टम. Started the number system. Number system is the digital system required the digital information. Digital information is a representation of fixed number or discrete symbol known as the digits. Digits basically क्या है? Combination of 0 and 1. 0 और 1 के combination से अपन को क्या बोलते हैं? Digits. Actually digital electronics technically अपन इनको क्या बोलेंगे? 0 और 1 को digits की form. So binary system used in digital form by using 2 digits 0 and 1. डिजिट्स क्या है यहाँ पे? 0 and 1. और 0 और 1 को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 क्या है? ऑफ कंडीशन. 1 क्या है? ऑन कंडीशन. ओके, ऑन ऑफ कंडीशन को बेसिकली अपन प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ऑन ऑफ कंडीशन एक्चुअली क्या रहेगा? स्विच. जैसे अपने घरों में एक स्विच रहता है ना, ट्यूबलाइट और पंखे का. फैन ऑन करना है तो नीचे करते हैं, फैन ऑफ करना है तो ऊपर करते हैं. तो ऑन ऑफ बेसिकली क्या है? स्विच हो गया. ये वाले स्विच कौन से होते हैं? दीज स्विच आर नोन एज द इलेक्ट्रिकल स्विच, है ना? इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में अपन काम में लेते हैं. और डिजिटल फॉर्म में अपन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील्ड में जो अपन स्विच के काम में लेंगे दैट इज नोन एज द स्विच बाय यूजिंग द 2 digits 0 and 1. ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिजिटल सिस्टम, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट वन टाइप इज द डेसिमल सिस्टम, सेकंड वन इज द बाइनरी सिस्टम, थर्ड वन इज द ऑक्टल सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज द हेक्स नंबर सिस्टम. बेसिकली ये 4 नंबर सिस्टम ही अपन स्टडी करेंगे. 4 ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अपन इन चारों की सीरियल वाइज अपन एक एक करके स्टडी करते हैं. नेक्स्ट इज द डेसिमल सिस्टम को उसका बेस के रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंट करें तो दैट्स विल बी द बेस इज द 10. बाइनरी फॉर्म में बेस 2 रहेगा, ऑक्टल केस में 8 रहेगा और हेक्साडेसिमल के केस में 16 रहेगा. Okay. अब डेसिमल का बेस अगर 10 है so it will be represent from 0 to 9. That will be represent from 0 to 9. Next is the binary. The base is to represent by the 0 and 1. 2 digits लेंगे 0 और 1. तो number of digits कितने हुआ? 2. तो base will be the 2. Octal case में ये लेंगे अपन 0 to 7. तो total will be the 8. The base is the 8. Hexadecimal के केस में 16 रहेंगे 0 to 15.
but speciality is that 9 के बाद अपन इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A B C D E. तो बेसिकली A रिलेटेड हो गया 10 से, B रिलेटेड हो गया 11 से, C रिलेटेड होगा 12 से, D हो गया 13 से, E हो गया 14 से और F हो गया 15 से. So 0 to 15 टोटल कितने हो गए 16. So the base is the 16. अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि वाई जब 10 को 10 से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करा या B को 11 से रिप्रेजेंट क्यों नहीं करा. तो इसके पीछे रीजन ये रहेगा कि अगर अपन यहाँ A की जगह 10 से रिप्रेजेंट करेंगे तो 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है 0 और 1 में, है ना. B की जगह अपन 11 लेंगे तो 11 भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया. तो 0 और 1 से डिफरेंट लेना है अपने को, अदरवाइज या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अपन इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. So that's why we have to using the 10 की जगह अपन क्या काम में ले रहे हैं, A ले रहे हैं. 11 की जगह अपन क्या काम में ले रहे हैं, B ले रहे हैं. Next is the representation of number system. नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट अपन कैसे कर रहे हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट को अपन थोड़ा सा डेप्थ में अपन इसको देखें. तो स्टार्टिंग किसकी कहां से हो रही है, xn डैश 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 अप टू x2 x1 x0 decimal point or the fractional point. After that x minus 1 x minus 2 dash 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 up to x of minus n. So total representation अपन ने क्या करा है कि डेसिमल पॉइंट से पहले x of n है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है. डेसिमल के बाद क्या नेगेटिव क्वांटिटी है, x of minus 1 है, minus 2 है, minus n है. So that will be the representation or the decimal point. For example जैसे अपन लें, जैसे नीचे वाली अपन में क्या ले रहे हैं 1.414 डेसिमल पॉइंट में नीचे वाला जो एग्जांपल अपन लें तो उसमें अपने को क्या दिखा रहा है जरा 1.414. तो 1 तो क्या है पॉइंट से पहले है तो पॉजिटिव से रिलेटेड है, पॉइंट के बाद क्या है 414 तो वो नेगेटिव से रिलेटेड है. तो इस फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर दोबारा इक्वेशन फर्स्ट में देखें अपन. इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो पॉजिटिव साइड में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, x of n रेज टू द पावर r रेज टू द पावर n. r क्या है यहाँ पे बेस, जैसे डेसिमल में 2 बेस होगा, ऑक्टल में 8 बेस होगा, बाइनरी में 2 बेस होगा, हेक्साडेसिमल में 16 बेस होगा. सो सिमिलरली द r इज द बेस, r इज द बेस ऑफ नंबर सिस्टम. ओके, r is to the power n, x2 r is to the power 2, x1 r is to the power 1, x0 r is to the power 0. फिर ये डेसिमल के पॉइंट वाला बाद वाले पॉइंट इसमें स्टार्ट हो गया, जैसे x raised to the power minus 1 r raised to the power minus 1, x raised to the power minus 2 r raised to the power minus 2 up to the r raised to the power minus n r raised to the power minus n. ओके, अब जैसे एग्जांपल से अपन इसको स्टडी करके देखें. सो 786 डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 रहता है. अपन जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा है. इस फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लेंगे, ये डेसिमल में फ्रैक्शनल कोई क्वांटिटी है नहीं, सारी पॉजिटिव क्वांटिटी अपने को कंसीडर करनी है. सो दैट विल बी द 7 into 10 to power 2 प्लस 8 into 10 to power 1, जैसे यहाँ अपन इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने देखा हुआ है. नेक्स्ट 6 into 10 to power 0, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी. अनदर एग्जांपल क्या है, फ्रैक्शनल पॉइंट है. फ्रैक्शनल पॉइंट में अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाता है, इंटीजर, है ना. पॉइंट के बाद वाला रैशनल या फ्रैक्शनल पॉइंट कहलाएगा, और ये बीच में क्या रहता है डेसिमल पॉइंट रहेगा. तो इंटीजर क्या है इसमें 1 है, फ्रैक्शनल 414 है, और पॉइंट क्या है डेसिमल पॉइंट है. सो 1 इज रिलेटेड टू द पॉजिटिव क्वांटिटी, सो 1 into r is to the power 1, r is to the power 1. नेक्स्ट क्या डेसिमल पॉइंट आ गया, इसके बाद 4 को माइनस क्वांटिटी चालू हो जाएंगी, माइनस 10 to power minus 1, 10 to power minus 2, 10 to power minus 3. Okay, so that is representation of the integer and the fractional or the decimal quantities. Okay, next is the binary number system represented by the 0 and 1. ये डेसिमल नंबर सिस्टम में अपन ने रिप्रेजेंट करा. नेक्स्ट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 और 1 की फॉर्म, ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1. अब जैसे कोई एग्जांपल में दिया है 101 दे रखा है, इसमें r की वैल्यू क्या रहेगी बाइनरी में 2, बिकॉज द बेस इज द 2. सो फर्स्ट इज द 1 into 2 raised to power 2. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी 0, 0 into 2 raised to power 1 plus 1 into 2 raised to power 0. The 5 is the
The total sum is the 5. 5 is in the decimal form. So basically, binary form is converted into the decimal form. Okay, the relation between the binary and the decimal. Next, study the decimal to binary conversion. Decimal quantity को अपन binary form में convert करना चाहते हैं. So there is the process where the quantity is divided by the base. The concept is that the particular quantity here is in the example is the quantity is the 117. Okay, that is divided by the base. अब बेस बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है. बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या रहता है 2. So basically divided by the 2. So 2 divided by the 117, the quotient will be the 58 and the remainder will be the 1. Okay, remainder क्या आएगा इस केस में 1. 58 क्वाड्रेंट्स में आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा. अगेन 58 को अपन डिवाइड करें तो 29 जाएगा, 29 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0. नेक्स्ट अगेन 2 is also divided by the 29 by the 2, that will be the 14, remainder will be 1. Again simultaneously divided, so finally will be the remainder will be the 1. It is not visible, but the last the remaining will be the 1. So 1 is attached for this one remainder. 1 is attached to this one remainder. So 1 1 0 1 0 1. So the final answer is the 1 1 0 1 0 1. Base is the 2. So that will represent from MSB to LSB. So last one remainder is always a MSB and the first one remainder will be the LSB. So 1 नीचे से ऊपर जाएंगे अपन. The representation कैसे आएगा, यहाँ जो रिमाइंडर लास्ट में बचा हुआ है वो नीचे से जाके अपन ऊपर की साइड में जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0. Base is the 2. Again conversion, simple example, conversion from decimal point. 10 base is the decimal point, is converted into the base 2 to the binary form. 9 is also in the decimal, converted into the binary form. So similar way में 14 को डिवाइड करें 2 से 7 आएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 0. फिर 7 को फिर दोबारा डिवाइड करो 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा. फिर लास्टली 1 क्या रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा. फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे अपन, तो 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. That one is the MSB, last one remainder. First one remainder is the LSB. So it is MSB, it is the LSB. The technical terms is known as the MSB, the most significant being leftmost bit रहेगी. LSB the least significant bit, rightmost bit रहेगी. So that is the representation or the conversion from decimal to binary. Another example 9421. Similar way 2 से divide करेंगे 9 को 4, remainder 1. Again 4 को divide करेंगे 2 times, remainder 0. Next 2 को divide करेंगे 1 time, remainder 0. तो 1 upward direction में आएगा 1 0 0 1. So that is the representation of the conversion from the decimal to binary. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी, बाय द वे इंटीजर फॉर्म की जगह अपन इसमें डेसिमल फॉर्म लें या फ्रैक्शनल फॉर्म लें, है ना, डेसिमल पॉइंट को या फ्रैक्शनल फॉर्म लें, तो उस केस में अपन इसको डेसिमल क्वांटिटी को अपन किस तरह से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, फ्रैक्शनल पॉइंट वाली क्वांटिटी है. जैसे 0.61 तो 0 इंटीजर हुआ, ये फ्रैक्शनल पॉइंट हुआ, ये डेसिमल पॉइंट हुआ. इज इट क्लियर? सो फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट को अपन सॉर्ट आउट करें या फ्रैक्शनल पार्ट को अपन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये उसका प्रोसीजर बताएगा. सो इस एग्जांपल में 0.61 है, तो इंटीजर तो 0 है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.61. बेस क्या ले रहे हैं अपन 2. तो जब फ्रैक्शनल पार्ट को अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ इसे इंटीजर पार्ट को कैलकुलेट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, प्रीवियस स्लाइड में अपन देख रहे थे. बट इसका उल्टा रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये बेस 2 है, उसको डिवाइड करने की बजाय अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे. जैसे 0.61 है मल्टीप्लाइड बाई 2, 1.22. 1 क्या इंटीजर आया. इज इट क्लियर? फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.22 है, तो 0.22 को फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करा 0.44. इंटीजर पार्ट क्या है इसका 0 ले लिया. नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88. तो इंटीजर पार्ट विल बी 0.
Next 0.88 again multiply 1.776. Integer part is 1. Again fractional part is again multiplied by the 2. The 1.52 integer part is 1. तो इस केस में अपन क्या लेते जा रहे हैं, इसका इंटीजर पार्ट कंसीडर करें। तो और रेसिप्रोकल लेना है तो ये कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की साइड में। सो ऊपर वाला क्या रहेगा MSB, नीचे वाला क्या रहेगा LSB। So that will be represent is the 100,111 100,111 for the fractional part. Fractional part represent in the binary formation. Normally continuous 6 significant bit तक अपन इसको consider करते हैं, अदरवाइज आगे 0 नहीं जाते हैं। अगर आगे 0 आते जा रहे हैं तो अपन उसको वहां रोक सकते हैं। अगर 0 1 वेरिएशन आ रहा है तो उसको अपन 6 पॉइंट तक कंसीडर करके उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन जैसे फ्रैक्शनल भी ले लिया और इंटीजर भी ले लिया। एक नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन क्या ले रहे हैं, इंटीजर पार्ट भी ले रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी, दोनों पार्ट्स अपन कंसीडर करें। तो इंटीजर पार्ट में क्या है, 500 है, डिवीजन वाला प्रोसेस लगाया, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 1 से डिवाइड करा, 1 से 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, फाइनली ये रिमाइंडर अपन कंसीडर करते गए। अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है तो 1 1 1 1 1 0 1 0 1, that is the integer part representation in binary form. Okay, fractional part लिया तो fractional part क्या है, 0.21 है, तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करा, क्या है 0.42, इंटीजर क्या है इसका 0, ये 0 ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट 0.42 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, इंटीजर पार्ट क्या है 0 है, 0 फिर दोबारा ले लो। नेक्स्ट है 0.84 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, 1.6 है, इंटीजर पार्ट इज 1, तो ये इंटीजर पार्ट को लेंगे अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1, that is the 0 0 1 1 0 1। the total overall representation कैसे आएगा, 1 1 1 1 1 0 1 0 0, ये इसका इंटीजर वाले पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट फ्रैक्शनल वाले पार्ट का 0 0 1 1 0, so that is the representation of the conversion from binary to decimal. Okay, नेक्स्ट फिर कन्वर्जन है इसमें डेसिमल टू बाइनरी। अभी तक अपन ने कैसे करा कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन। नेक्स्ट है अपन बाइनरी में कन्वर्जन करना चाहे, बाइनरी फॉर्म में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे, तो बाइनरी फॉर्म में क्या है, जैसे 1 1 0 की फॉर्म में रहेगा, 1 0 फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन, बेस 2 है, दैट इज द बाइनरी फॉर्मेशन। यहाँ बेस 10 है तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, so representation is the 1 2 की पावर 5, 5 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। नेक्स्ट इज द 1 अगेन 2 raised to the power 4, नेक्स्ट 0 2 raised to power 3। लेफ्ट साइड मोड है, 2 की पावर पॉजिटिव में कंसीडर करनी है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाय द वे अगर इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट आ जाते हैं, इंटीजर फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में पावर पॉजिटिव साइड में चलेंगी, पॉइंट के राइट साइड में पावर नेगेटिव साइड में चलेंगी। तो ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 2 7 पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉइंट के बाद 0 1 2 3, तो 0 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 2 की पावर 4 2 की पावर -4 2 की पावर -4। So finally that will be the answer in decimal. So as we know or already discussed the representation of the binary to decimal, वो जो बाइनरी का डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन देखा था उसी फॉर्म में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। okay? नोटेशन अपन करते हैं जैसे निबल, दैट इज द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स और द 4 डिजिट्स। 4 बिट्स या 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को अपन क्या टेक्निकल टर्म्स क्या बोलते हैं, निबल। बाइट क्या रहता है, बेसिकली 8 बिट्स या 8 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को, 1 2 3 4 5 6 7, 8 के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं। वर्ड्स अपन किसको बोलते हैं, 16 बिट्स को, 16 बिट्स के कॉम्बिनेशन को वर्ड्स बोलते हैं। डबल वर्ड किसको बोलते हैं, जिसमें डबल वर्ड्स हो, दैट मींस द 16 into 2 दैट इज द 32 बिट्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, डबल। थैंक यू, होप सो आपको ये फर्स्ट कन्वर्जन स्टडी में आ गया होगा, जिसमें अपन डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल की स्टडी करी हुई है ना। अब नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी एज पर द टाइम टेबल, जैसा टाइम टेबल उसके रेस्पेक्टिव आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी।
और उसके बाद फिर अपन है ना अब जो भी आप अपना टाइम टेबल है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो, आपके टाइम टेबल में जो भी क्लासें डिफाइंड हैं, जो भी डिजाइन कर रखी हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसी के रेस्पेक्टिव मैं क्लास लूंगा। आपके पास कोड, आपके पास कोड और जो भी है वो मैं टाइम टू टाइम वहां पे डिस्प्ले कर दूँ। अब आपको कोई भी क्वेरी है आप अपने चैट बॉक्स पर डाल सकते हो। हाँ मयंक, माइक को ऑन करो मयंक। चलो अब तुम्हारी अभी जो भी है इसमें तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो मैं गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, है ना। गूगल क्लासरूम में आप अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, इस लेक्चर को भी मैं, इसका जो रिकॉर्डिंग होगी ना, इस रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर को भी मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा और गूगल क्लासरूम में आप इसकी स्टडी कर लेना और जो भी कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये लेक्चर अपन यही एंड करते हैं, कल तुम्हारा लेक्चर होगा इसी टाइम पे, है ना। ओके, थैंक यू।